जी काजम साहब प्लीज। Kazim Saab has raised hand. Any question? आपकी आवाज नहीं आ रही काजम साहब। सर आई थिंक उनका ना माइक ऑफ है। माइक मेरा ख्याल ऑफ है उनका बिल्कुल। जी चलें उतनी देर अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें जी। जी अपना थोड़ा थोड़ा बाई नेम बता दें, अपना किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, क्या नाम है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए सब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर माय नेम इज हाफिज शाहिद अली। जी जी। आई एम वर्किंग यूईटी लाहौर। और मैं जॉब कर रहा हूँ पीएनडी ब्रांच में यूईटी लाहौर में। और करंटली मैं एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। प्लीज आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। माय नेम इज डॉक्टर एहसान अली, वर्किंग इन द डिसिप्लिन ऑफ फॉरेस्ट्री यूएफ। जी एहसान सर जी प्लीज वेलकम जी वेलकम। Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम। Sir, my name is Awais Hanif from PND UET Lahore. जी गुड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम प्लीज। सर आयशा मलिक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फतेह जंग से। जी जी प्लीज। साइंटिफिक ऑफिसर। जी वेलकम जी वेलकम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। Sir, I am Ata Muhammad Babar from Arid Agriculture University, PhD scholar and assistant professor at Buluchan Agriculture College, Quetta. वेलकम जी वेलकम वेलकम जी अता सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। Sir, it's Mavish Javed from Planning and Development Board, Punjab, and I am planning officer over there. गुड। वो एक और होता था वहां पे प्लानिंग ऑफिसर, फहद है वहां पे? जी सर। फहद है, ठीक ठीक। Assalamualaikum sir. अस्सलाम। My name is Tahira Nisa. I am PhD scholar at Plant Pathology, Pir Meher Ali Shah Arid Agriculture University, and I am lecturer at Buluchan Agriculture College. माशाल्लाह, वेलकम जी वेलकम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर, अजहर उलक from Silent Water Conservation Research Center, Suhawa, and I am scientific officer in agronomy department. माशाल्लाह जी, वेलकम जी वेलकम। वहाँ लोग बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। Sir, I'm Ikra Ghafoor. I'm assistant research officer from V Research Institute, Faisalabad. जी वेलकम जी बेटा वेलकम। Thank you sir. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम। Sir, I am Mavish Maktoum from Weed Research Institute, Faisalabad, working as a assistant research officer. जी बेटा जी वेलकम जी वेलकम। Thank you so much. Assalamu alaikum sir. Here is Muqaddas Salim. I am working as a lecturer in the Department of Plant Breeding and Genetics, University of Agriculture, Faisalabad. जी वेलकम बेटा वेलकम। Thank you sir. पता नहीं ऐसे लगे।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वास्सलाम जनाब। इस डॉक्टर आबिद सुबहानी, डायरेक्टर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल। जी जी सर, वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम सर, वेलकम। जी थैंक यू सर। Assalamualaikum sir. जी वास्सलाम। Dr. Razaullah, Assistant Professor, Institute of Agricultural and Resource Economics, University of Agriculture, Faisalabad. जी डॉक्टर साहब, वेलकम जी, वेलकम डॉक्टर साहब। Thank you sir. Thank you so much. समझ आ गई थी प्लेट रखी। जी बेटा, anybody else? Assalamualaikum, Dr. Saab. I'm Dr. Rifat from Soil and Water Conservation Research Institute, Chakwan. जी वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। Assalamualaikum sir. जी वास्सलाम। हाँ Sir, जी I'm Almaz Iqbal, currently working as agriculture officer in economics and marketing department and also PhD scholar in UAF. तो आप चनियोट ही हैं या कहीं और ट्रांसफर हो गया है? Sir, Chiniot you. अच्छा अच्छा, चलें चलें, we will learn something from you as well. जी sir. Assalamualaikum, Dr. Saab. जी I'm वास्सलाम। Dr. Gulnaz Hamid from Arid Agriculture University. I'm assistant professor in economics department. वेलकम जी, वेलकम बेटा, वेलकम। Assalamualaikum sir. जी वास्सलाम। Sir, my name is Mahmood Alam Khan. I am admin officer PND UT Lahore. वेलकम जी, वेलकम जनाब। Thanks sir. बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum sir. I'm Safia Malik from Thakri Tikwal, scientific officer. जी वेलकम बेटा, वेलकम। जी अगर कोई रह गया है तो प्लीज। Assalamualaikum sir. जी वास्सलाम। Sir, I am Dr. Navera Junaid, working as an associate research fellow from Punjab Economic Research Institute, Lahore. लाहौर, ठीक ठीक। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक वाहिद, I'm working as an associate professor in Department of Agronomy, University of Agriculture, Faisalabad. जी जी वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो हमारी वो स्टेट बैंक की एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमारी टीम का पार्ट है इशफाक साहब। वेलकम जी इशफाक सर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम sir. जी वास्सलाम। Sir, my name is Dr. Haroon Zaman Khan and I am assistant professor in Department of Agronomy, University of Agriculture, Faisalabad. जी वेलकम हारून साहब, वेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी माशाल्लाह जी। तो वेलकम जी हारून साहब। तो चलें लोग इंट्रो होते चले जाएंगे जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं I always put myself as in the line of the students, my dear, because when you are a student, you are a learner, and when you are a learner, then your mistakes are being forgiven. So I am as a student of economics here in the Faculty of Agriculture and Resource Economics. तो वैसे जो designation है वो associate professor है बेटा यहाँ पे. It's nearly from last 21 years I've been working here and have a dynamic experience working with some international organizations. World Bank, IFC, Asian Development Bank, and then Central Bank of Pakistan. And similarly, I've been involved for a year with the Planning and Development Department, Government of the Punjab, back in 2014 as the Chief Economist Punjab. So, sara ADP formulation process, so sara that was from my office. So, जितने भी projects PC1, PC2 आते हैं, my dear, first they have to come chief से होते हुए अपने Chief Economist office, वहाँ से फिर वो जो हमारी PDWD की मीटिंग होती है उसके अंदर ये सारी चीजें जाती हैं हमारी। तो ये किताबी बातें एक तरफ रही, मुझे आज किसी ने सुबह माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक मैसेज आया कि जी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, तो आई ऑलवेज लाइक प्रैक्टिकल विजडम माय डियर। बाकी जितना भी मटेरियल है ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, PC1 भी उन्होंने सारे अपलोड कर दिए हैं, वो जो उनके टीजी मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन है
ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब माय डियर। वो सारी डॉक्यूमेंट्स बेटा यहाँ पे डाउनलोडेबल PC1 PC2 अब तो वो सारे कंप्लीट उन्होंने अपलोड कर दिए हैं, हर सेक्टर के पड़े हुए हैं। इस सेक्टर को आप ले लें, हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, वाटर सैनिटेशन, व्हाटएवर सेक्टर्स आर, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। और इसी तरह जो हमारी अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट जो रिफॉर्म्स है फेडरल गवर्नमेंट पे, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, तो वहां पे भी ये सारे मैनुअल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का तो आजकल कोई इश्यू नहीं है। तो वी नीड टू गेट सम प्रैक्टिकल विजडम माय डियर व्हेन वी हैव टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो अपनी जो प्रैक्टिकल विजडम है दैट आई विल शेयर विद यू पीपल। आज का तो हमारा ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे डिस्कशन है 2 सेक्शन। और कल फिर इंशाल्लाह हमारा जो है ना, उसमें आपको एक्सेल शीट होनी चाहिए आपके लैपटॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। वहां पे एक्सरसाइज करेंगे, वो जो बेसिक वो इकोनॉमिक एनालिसिस है, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके अंदर जो हमारा स्केड्यूल है उसके अंदर मेंशन है सारी की सारी। अगले 2 दिन उस पे होंगे। और नेक्स्ट वीकेंड जो सैटरडे संडे वो हमारे हैं एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट नाजम साहब, ही इज वर्किंग एज एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट इन द US एम्बेसी इन इस्लामाबाद। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं सारे, तो ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही विल शेयर विद अस हिज प्रैक्टिकल विजडम थॉट ऑन प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन माय डियर। तो आप सारे के सारे माशाल्लाह हमारे क्या उससे कह सकते हैं, आप सारे यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस, यू आर ऑनरेबल फॉर अस। आप सारे ऑफिसर्स हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, हाई पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तो ये एक आपस में हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा माय डियर। तो मैं भी इंसान हूँ, कहीं मेरे से गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो ये 2 वे लर्निंग प्रोसेस होता है, ये कोई 1 वे नहीं है। अब दुनिया चेंज हो गई है, ये नहीं है कि एक ही बंदा बोलता रहे। इंटरप्ट भी माय डियर, शेयर योर थॉट्स, गिव योर इनपुट। आप अपना इनपुट भी दें माय डियर, कि जिससे ये हम इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को वी कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव। इससे ज्यादा हमारी जो स्किल्स हैं दैट कैन बी इम्प्रूव्ड माय डियर। तो वो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल एज वेल कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, और जो है क्या उसे कह सकते हैं अपना बाकी ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम नेगेटिव कमेंट्स से अवॉइड करें बेटा। कमेंट्स पॉजिटिव जरूर आने चाहिए लेकिन नेगेटिव शुड नॉट बी। तो आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ये हमारा जो साथ है ये 2-3-5 दिन का, तो दैट विल बी अ गुड बिगिनिंग ऑफ आवर फ्यूचर इंटरेक्शन एज वेल माय डियर। तो हमारी ये ज्यादातर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही लोग हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं माय डियर। तो ये सबको इससे बेनिफिशियल होगा माय डियर। तो वेलकम फ्रॉम माय साइड माय डियर। तो अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज फील फ्री, कोई वर्ड ऐड करना चाहे, कोई वर्ड ऑफ विजडम ऐड करना चाहे तो प्लीज। जी कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये अब ये PND पे कोई थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया सर? पहले आप कहते हैं कंसेप्ट पेपर बनाए, बाद में PC1 बनाया सर, ये कुछ इसके बारे में सर थोड़ी गाइड। हाँ, इसमें बेटा थोड़ा सा चेंज ये किया कि उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क इन्वॉल्व होता है, लॉट ऑफ एफर्ट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। PC1 आपको पता है कि कितना कम्बरसम प्रोसेस है सारे डॉक्यूमेंट को बनाना। तो इसलिए पहले स्टेज पे उन्होंने कहा दिया कि 2-3 पेजेस का कंसेप्ट पेपर दे दें। तो अगर वो कंसेप्ट पेपर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाए, वो आइडिया क्लिक कर जाए, तो फिर वो आगे हो जाते हैं डिटेल डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर वो कह देंगे कि आपको नो यू कैन मूव ऑन PC1 डॉक्यूमेंट। तो इस वजह से ये इन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा सा किया है। तो 2-3 चीजें मैं ये क्लियर करता हूँ, PC2 है या PC1 है, जो वो मेरे ज़हन में थी 1-2 चीजें। एक तो ये कि whenever you are going to bring any, ये देखें ये बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट होते हैं बेटा, ये they are all investment ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑल दी प्रोजेक्ट्स। तो हमेशा आइडिया वो लेके आए जिसमें ये देखें, वहां पे जब PDWD की पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की सेंट्रल मीटिंग होती है ना, जिसमें मेंबर सारे होते हैं, तो बहुत बड़ा फोरम है जहां से प्रोजेक्ट्स जो प्रोविंशियल लेवल पे अप्रूव होते हैं। इसी तरह सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, इसी तरह एक्ने का एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है जिसको PM चेयर करते हैं माय डियर। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है फेडरल लेवल पे जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो जो ज्यादा वर्थ के प्रोजेक्ट्स वो वहां जाते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चीज मेन कंसीडर करने वाली ये होती है कि व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ योर इकोनॉमी। आपकी प्रोविंस की या पूरे पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के अंदर हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट माय डियर।
क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हाउ मच पीपल विल बी अपलिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी लाइन माय डियर, यू नो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे इंप्रूव होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है इस प्रोजेक्ट से। तो ये बेसिक ये थॉट्स ज़हन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि यू शुड बी वेरी मच अवेयर, जब वहां पे जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए जो मीटिंग होती है जिसमें आपको यू नीड टू फाइंड योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट PC1, तो उसमें अल्टरनेटिव्स को भी क्लियर करके जाएं कि वहां पे क्वेश्चन होते हैं कि जी इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या इसका मार्केट सोल्यूशन नहीं है, व्हाई यू हैव टू प्रोवाइड दैट पब्लिक सेक्टर मनी फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, क्या मार्केट नहीं दे सकती इसका सोल्यूशन, तो वो भी देख के जाएं कि इस या ये कि दैट प्रोजेक्ट या दैट यू नो इन्वेस्टमेंट लाइन विल ब्रिंग द प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर इनटू दैट इन्वेस्टमेंट इनटू दैट एरिया माय डियर, ये बिगनिंग होगी। तो इस किस्म की एक तो ये ज़हन में क्लियर हो। आज का चूंकि गवर्नमेंट का फोकस भी यही है और जो वर्ल्ड का फोकस भी यही है टू ब्रिंग यू नो प्राइवेट सेक्टर इन द यू नो प्रोजेक्ट्स। तो ये पब्लिक मनी होती है, मैंने देखा बहुत जो प्रोजेक्ट आता है उसमें यू नो ब्रिक एंड मॉर्टर कैपिटल कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है ना, गाड़ियां दे दी, बिल्डिंग्स खड़ी कर रही है। टेक्नोलॉजी ने ये टेक्नोलॉजी बेटा ये जो क्या कहते हैं कोरोना वायरस ने और डिजिटलाइजेशन ने आके ये बिल्डिंग्स बेमानी हो रही हैं। फ्यूचर के अंदर ये आपकी जितनी है सारी की सारी चीजें आप देख ही लिया मैंने और आपने, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन माय डियर। तो इसलिए ये चीजें देखें कि फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या ट्रेंड्स हैं। एक तो ये चीज जस्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, अगर उसका मार्केट सोल्यूशन है तो फिर वो लोग जो है ना वो आपके प्रोजेक्ट को टर्न डाउन कर देते हैं। और दूसरा मैंने अक्सर देखा है कि जो है ना उसकी कॉस्टिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते जब डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, खासकर जो कॉस्ट एस्टिमेशन है इसके अंदर इंजीनियर्स का बहुत रोल होता है। तो टेक बोर्ड ऑन इंजीनियर्स माय डियर, ये जितनी भी सिविल वर्क्स की कास्ट है वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बाज का तो ओवर एस्टिमेशन हुई होती है, बाज का रॉन्ग एस्टिमेशन होती है। तो इसलिए यू नो ये चीजें शुड बी प्रॉपरली प्रोफेशनल्स की सर्विसेज ले लें। तो वो जो कास्टिंग प्रॉपर की हुई हो माय डियर, कास्टिंग के अंदर बहुत, मैंने कहा ना शुरू में बताया कि कास्टिंग के अंदर बहुत मिस्टेक्स आती हैं। और फिर जो है ये ब्रिक एंड मॉर्टर से अवॉइड जितना हो सकता है इनसे अवॉइड किया जाए ना। जब चीफ मिनिस्टर थे जो शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने तो सर्कुलर इशू किया था कि जो कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोई जो नई गाड़ी नहीं दी जाएगी माय डियर। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो प्रोजेक्ट्स फिर जो है वो प्रॉपरली अगर आप डिफेंड करते हैं वहां पे तो वो प्रोजेक्ट्स प्रूव हो जाते हैं माय डियर, वो इतना बड़ा नहीं होता। बाकी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स माय डियर, R&D के प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा, P&D रिसर्च के प्रोजेक्ट्स अगर कोई आए तो उनको कोई नहीं इतना ज्यादा हर्डल क्रिएट होती माय डियर। वो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, करोड़ 20, 30, 10 करोड़ रुपए से क्या फर्क पड़ता है P&D, तो वो प्रूव हो जाते हैं हमारे। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रूव हो जाते हैं, कि हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से है, पॉवर्टी रिडक्शन से है प्रोजेक्ट्स माय डियर। तो इनसे लिंकेजेस करें। आजकल जो है आजकल एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो वो बहुत बड़ा है, कमिटमेंट है हमारी गवर्नमेंट की। तो जो भी आप PC1 डॉक्यूमेंट बनाएं तो PC1 डॉक्यूमेंट के अंदर जो SDGs किसको एड्रेस कर रहे हैं आप, ये क्लियरली जरूर मेंशन होना चाहिए। मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो PC1 डॉक्यूमेंट है वहां पे कहीं ये चीज दीजिए, रिक्वायरमेंट भी होती है। तो आपको जो ना SDGs गोल किसको लिंक कर रहा है, तो ये भी एक ये सिचुएशन बन जाती है दैट कैन हेल्प टू विन योर प्रोजेक्ट। तो ये फ्यू जो थॉट्स थी, जैसे जैसे फर्दर आती जाएंगी आई विल शेयर विद यू फर्दर। तो कोई इसमें अब ये क्या उसे कह सकते हैं, सबसे पहले तो माय डियर ये हमारा जो सेशन है ये जूम पे है, चूंकि ये जूम फ्री है, 40 मिनट्स का सेशन होता है। तो अगर 40 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा यू नो इन हो जाएंगे, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन? जी ये कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा बेटा, ये यू नो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ बहुत ज्यादा होती है ना, जिनके अंदर ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बिलियंस रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें ये P&D भी एडवाइस करता है कि शुड हैव टू डन सम फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। तो उनकी पहले जो है ना सिचुएशन एनालिसिस कर लिया जाए ना कि क्या इस प्रोजेक्ट्स की जो वो जो जिस एरिया के अंदर यू वांटेड कोई बड़ा, जिस तरह हम कहते हैं जी ये कालाबाग डैम प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, ये वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पे वापडा ने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग, इसकी कई फिजिबिलिटीज हुई हैं माय डियर। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है बेसिकली ये एक बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट होता है फॉर द PC1 डॉक्यूमेंट। ये आपका जो PC1 डॉक्यूमेंट है उसको सपोर्ट करता है
ये जो है ना PC2 डॉक्यूमेंट जो फिजिबिलिटी स्टडी है, तो इसलिए एडवाइजेबल है इसके लिए। वो फिर वो PND इसके लिए बजट भी होता है। तो अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, यू मेक योर डॉक्यूमेंट एंड ब्रिंग इन दी जो मीटिंग होती है वहां पे उनकी, तो उसके अंदर डिफेंड योर डॉक्यूमेंट, तो फंडिंग अवेलेबल होती है हमारे लिए। तो इसके लिए ये फिजिबिलिटी स्टडी करवानी है। ये सिचुएशन एनालिसिस होता है बेसिकली, जहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट को सिचुएशन एनालिसिस, उसकी क्या जो कालाबाग डैम है वहाँ पे जो साइट का एनालिसिस है बेसिकली, क्या वाटर का फ्लो है या साइट इज सूटेबल फॉर दैट, और उससे कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, इससे जो जो अगर डैम बनता है क्या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और क्या उससे कह सकते हैं कितना वाटर सेव होगा, और कितनी और हमारी दैट सेविंग वाटर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस, हमारी जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इंप्रूव होगी। तो इस किस्म का ये किस्म की स्कोपिंग स्टडी है या मैपिंग होती है उस एरिया की कि जहाँ पे आप वो करना चाहते हैं प्रोजेक्ट माय डियर। तो इसमें भी आपकी टेक्निकल क्या से कहते हैं आप फर्म्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये PC2 अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी करवाना चाहते हैं तो यू कैन हायर द कंसल्टेंसी फर्म, उसके भी वो सारे TORs अवेलेबल हैं प्लानिंग जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, हाउ यू आर गोइंग टू हायर द कंसल्टेंसी फर्म माय डियर। तो वो आप थ्रू बिल्डिंग आप जाते हैं, कंसल्टेंसी फर्म हायर करके दैट कंसल्टेंसी फर्म कैन हेल्प यू आउट टू मेक दैट फिजिबिलिटी स्टडी माय डियर। तो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स है, नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, दे आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग दीस डॉक्यूमेंट्स। हमारी बात ये होता है कि डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी नहीं होती, हम ये भी मिस्टेक करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे एग्रीकल्चर की तरफ से हमारा थोड़ा सा ये भी एक वीक एस्पेक्ट होता है बेटा कि हम जो है वो जो प्रोजेक्ट रूम्स में बैठ के हमारे बना लेते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर अगर प्रोजेक्ट बनाने से पहले वो क्या कहते होते हो रैपिड मार्केट एनालिसिस या रैपिड मार्केट सर्वे भी उसे कहते हैं। थोड़ा सा अगर एरिया की हम जाके खुद सर्वे कर लें, पर्टिकुलरली पर्संस हु आर इन्वॉल्वड इन मेकिंग द प्रोजेक्ट, तो जो क्या उससे कह जी प्लीज ये माइक ऑन करें बेटा, आपका माइक ऑन नहीं है, वी कैन नॉट लिसन यू। जी प्लीज अपना माइक ऑन करें। जी बेटा आपका माइक ऑन नहीं है। अपना माइक ऑन करना। ये जो है OPPO F17 तो ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ डॉक्यूमेंट, ये प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट है PC2 जो फिजिबिलिटी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर बेटर ये होता कि जो प्रोजेक्ट टीम है वो जो एरिया वो जो प्रोजेक्ट इंटरवेंशंस है उसकी जो प्रैक्टिकल विजडम इफ दे कैन हैव तो बड़ा इजी हो जाता है। बाहर नहीं आ रही तो आई कैसे नहीं होती? आपको ये है नजर आ रहा है जी ये जो डॉक्यूमेंट है? जी सर आ रहा है। जो मेरी आवाज भी क्लियर है? जी सर। जी जी यस सर। अच्छा ये बेटा मैंने व्हेन आई डिड PhD तो मैं आई केम बैक टू पाकिस्तान, तो हमारे उस्ताद होते थे यहाँ पे डॉक्टर जाकिर साहब हमें मैक्रो पढ़ाया करते थे, तो कॉटन कमिश्नर रहे हैं फेडरल। जी वास्सलाम। सर अगर आप होस्ट हैं आप सबको काइंडली म्यूट कर दें, डिस्कशन का लास्ट टाइम रख लें क्योंकि इस तरह से जी ये प्लीज अच्छा मैं ये कह रहा था बेटा कि ना आई हैव सीन दिट वो जब PhD करके आए तो डॉक्टर जाकिर साहब थे हमारे, वो कॉटन कमिश्नर आप में से कोई जानते भी होंगे, तो वो बाद में वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नहीं, वाज कॉटन कमिश्नर एट दैट टाइम इन ईयर 2001 फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो आई वेंट टू सी हिम, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बेटा आप यहाँ बैठे मेरे साथ काम करें तो मैं आपकी जॉब का बंदोबस्त करता ना। तो फिर उन्होंने मुझे उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे फेडरल सेक्रेटरी होते थे, आपने नाम सुना होगा, बड़ी कॉम्पिटेंट थे डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी।
तो डॉक्टर साहब की मैंने ये क्वालिटी देखी थी कि वो जब भी कोई विजडम लेनी होती थी तो अपने ड्राइवर को कहते थे गाड़ी निकालो, दरिया जेहलम क्रॉस करके इरिगेटेड पंजाब में किसी गांव में चले जाते थे और वहां किसी ना किसी फार्मर से 2-4-5 फार्मर से डिस्कशन की और वो ही गॉट द पॉइंट। जी प्लीज, ये कौन कर रहा है जी ये सारी? बेटा बोलता हाँ, मेरे बेटे ने आर्मी आना तो जाना तो मेरे उनके पता मुझे जी डॉक्टर आबद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर हाँ नहीं वही तो मैं। जी बेटा आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हो? सर काइंडली आप सबको म्यूट कर दें, अगर किसी का क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज कर देगा। इस तरह से सब लोगों का माइक ओपन हो रहा है, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। मैं म्यूट ऑल कर दूं जाके? जी सर म्यूट ऑल कर दें, जिस किसी का भी क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज कर देगा। जी प्लीज, ये है अपना क्या उसे कहते हैं आप, ये PC2 डॉक्यूमेंट है जी। ये सिंपल सा सर्वे डॉक्यूमेंट होता है दैट यू नीड टू फिल द वैली। मैंने कहा ना कि ये जो PND पे ये प्रैक्टिस है हमारी कि वो देखते हैं जी आपने डॉक्यूमेंट को फिल किया कि नहीं किया। तो उसमें जो मेन चीजें देखने वाली होती हैं वो देखने वाली ये होती है कि इसका बजट कहाँ से आएगा और जो इसके कास्ट टेबल्स को, बाकी वो कहते हैं ठीक है खाने पूरे हैं। ना इतना टाइम होता है किसी के पास, वो आखिरी दिन आपका PC1 डॉक्यूमेंट आ रहा था या PC2 डॉक्यूमेंट आ रहा था उन सब के पास, तो इतना टाइम नहीं होता किसी को। दे जस्ट सी अपॉन कि इसका जो इतनी डिमांड कितनी है, फाइनेंस की डिमांड कितनी है, बजट कितना है और इसकी कास्टिंग कितनी है माइट। तो ये ज्यादातर गौरव जो है ना, जो जितने भी PND के अंदर ऑफिसर जो उनके चीफ्स हैं इस चीज को ज्यादा देखते हैं माइट। तो फिल द वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द पेपर्स। तो क्या आप फिजिबिलिटी स्टडी क्या करना चाहते हैं? पहले तो यू नीड टू क्लैरिफाई दैट कि क्या आपकी मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट एक शेयर किया है टू ब्रिंग द वेस्टलैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, जो है चोरस्तान और ये बरानी एरिया, वो भी देख लेते हैं। कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? स्पॉन्सर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, फेडरल गवर्नमेंट है, कौन है? एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, वाटर हेल्थ डिपार्टमेंट, हु इज द एग्जीक्यूटिंग बॉडी? तो ये बाकी है जिस तरह आप ये सिनॉप्सिस नहीं लिखते और या जो PID का जो रिसर्च प्रपोजल है तो वो उससे वो थोड़ी सी एकेडमिक डॉक्यूमेंट होती है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट होता है। यू नीड टू गिव सम फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अंदर आपको डालनी पड़ती है टू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर स्ट्रांग। तो इसमें ये जनरल डिस्क्रिप्शन जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है व्हाई दैट दैट फिजिबिलिटी स्टडीज नीडेड माय डियर। कितना इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा? 6 मंथ्स है, 1 ईयर जो प्रेजेंट फिजिकल ईयर है उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो जो फिजिकल स्टडी होती है ना, तो जो डायरेक्ट PC2 पे हमने ये जो क्या उसे कह सकते हैं, जो ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है, ये इट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर माय डियर। इसका ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी ईयर वाइज या जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो दे दें। जो मैन पावर आपको लोकल चाहिए, फॉरेन चाहिए, कोई कंसल्टेंसी फर्म चाहिए, क्या आपका फाइनेंशियल प्लान है, वेयर यू आर गेटिंग द फाइनेंस मनी, आपका डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, और यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट कहता मुझे रोक दिया था इन्होंने, तसव्वुर ने, अदनान ने, किन्ना का हां मैंने यार ये व्हाई यू आर पीपल मेकिंग नहीं किधर लगा रहा? स्टोर में पता स्टोर में लगा रहा। खालिद साहब प्लीज एक दफा सबको रिक्वेस्ट कर दें कि अपने माइक्स म्यूट कर दें। मैंने प्लीज ये सब के सब जो है अपने माइक्स म्यूट करें जी, अनम्यूट ना करें, शोर आ रहा है प्लीज। मैंने भी म्यूट ऑल किया है, फिर प्लीज ये सब म्यूट करें जी अपने माइक्स को। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो ये साथ इसके क्या उसे कहते हैं आप, ये पीछे आप ये सारी अब तो उन्होंने ये बहुत अच्छा कि ये साथ इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर दी है ना।
ये जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं, हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर परफॉर्मा। तो ये मैं अभी आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। दूसरा जो डॉक्यूमेंट थी, जो एक ये रात मैंने आपसे शेयर की है, ये थी एक फिजिबिलिटी स्टडी PC2 डॉक्यूमेंट था, ब्रिंगिंग वेस्टलैंड्स ऑफ थल, पोठोहार एंड चोलिस्तान एरिया अंडर कल्टीवेशन थ्रू अ comprehensive strategy। तो ये मेरे ख्याल 2014 का डॉक्यूमेंट, आई थिंक सो के या डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट ये लेके आए थे इस डॉक्यूमेंट को, माय डियर। तो इसमें ये एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है कि इसकी बेसिस पे फिर वो PC1 डेवलप होना है, माय डियर, के जो भी आपकी दुनिया के अंदर, तो आप देख लें जो 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 डेजर्ट हैं, जो थल एरियाज हैं, वो दे आर द नेशंस दे आर ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन, माय डियर। चाइना की एग्जांपल ले लें, इजराइल की एग्जांपल ले लें, दुनिया के अंदर तो बहुत ये चीजें तेजी से जा रही हैं हमारी। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एक पोटेंशियल पड़ा हुआ है, थल का पोटेंशियल है, पोठोहार एरिया का पोटेंशियल है, और चोलिस्तान तो आई एम फ्रॉम बेसिकली साउथ पंजाब फ्रॉम रहीम यार खान, तो आई नो द चोलिस्तान बेल्ट, माय डियर। तो ये किसी दौर के अंदर ये चोलिस्तान का जो एरिया है, जितनी भी हमारा ये सैंड है, सारी की सारी इसके नीचे बड़ी फर्टाइल लैंड है, क्योंकि ये रिवर बेल्ट था, माय डियर। ये घाघरा रिवर था, वो जो राजस्थान से इंटर होता था, रियासत बहावलपुर, और इसको क्रॉस करता हुआ फिर जब सिंध के अंदर जाता था, दैट वाज पैरेलल टू द इंडस रिवर। ये इंडस रिवर के पैरेलल चलता था हमारी अरेबियन सी में, ये भी फॉल करता था जाकर, और सिंध में इसका नाम हाकड़ा रिवर था। हाकड़ा कैनाल अभी तक वहां पे है। तो ये जो रिवर था, ये सारी उसकी जो बेल्ट है उस रिवर की, माय डियर। तो बड़ा फर्टाइल एरिया है। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसराइल की एग्जाम्पल है, वहां पे बहुत बड़ा डेजर्ट जो है, दे हैव ब्रॉट दैट एरिया अंडर कल्टीवेशन, माय डियर। तो हाउ टू ब्रॉट दैट एरिया अंडर कल्टीवेशन। इसी तरह ये जो आपकी पोठोहार बेल्ट है, तो आप देखें कितना पोटेंशियल है, कितना ऑलिव और जो वो कितनी है वहां पे, जो सिट्रस कितना सक्सेसफुल है, माय डियर। तो ये बड़ा पोटेंशियल है इसके। इस तरह ये हमारा जो थल का एरिया, खुशाब है, लिया बकर की साइड पे, माय डियर। तो ये बकर भी किसी दौर के अंदर, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तो मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, तो आई ऑलवेज हैव इकोनॉमिक्स उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती बेटा जब तक यू इन्वॉल्व इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये बकर भी किसी दौर के अंदर स्टेट रही है, माय डियर। तो ये बड़ा डेवलप एरिया रहा है किसी दौर के अंदर। तो ये टू ब्रिंग दीज जो हमारे पास एरियाज है, अब ये थल कैनाल जो है, इसलिए ये ठीक है, यहाँ से जो है आप यू कैन ब्रिंग दैट एरिया अंडर कल्टीवेशन, माय डियर। चोलिस्तान में भी ये चूंकि उसमें वहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा जो लैंड है वो आर्मी ऑफिसर्स को अलॉट की है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी कैनाल चली गई है, तो वहाँ पे काफी एरिया जो है ना वो अंडर कल्टीवेशन आ गया, माय डियर। अच्छा जी, स्पॉन्सरिंग मैंने कहा ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ वाटर मैनेजमेंट इसकी एग्जीक्यूशन है। ये डिटेल्स है, इसकी बैकग्राउंड रैशनल मैंने कहा था कि जो भी वो जो PC1 की डॉक्यूमेंट है, वाई पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब कितने हो गए हैं हम, क्यों जी 21-22 करोड़ हो गए हैं,